और प्रेजेंटली जो है केरला असेंबली के डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं। कर्नाटका इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और यूडीएफ ने कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। इस ताल्लुक से बेंगलुरु में आईयूएमएल के रियासती सदर एन जावेदुल्लाह की रिहाइशगाह पर एक खुसूसी मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें उलमा इकराम और समाजी कारकुनान भी शामिल रहे। इस मीटिंग में हेब्बाल के एमएलए कैंडिडेट भारती सुरेश भी मौजूद रहे। कांग्रेस के कैंडिडेट भारती सुरेश की तायद का ऐलान किया गया। इस ताल्लुक से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हुकूमत केरला के डिप्टी अपोजिशन लीडर पीके कोनहल्लीकोट्टी बेंगलुरु पहुंचकर इस मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने शांग्रीला में मुनक्किदा मीटिंग में भी शामिल हुए। वहां प्रोग्राम के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार, पी चिदम्बरम और रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। We came for campaigning in this election. All of you know that this is very important election that is taking place in Karnataka. Even in the context of our country, it is very important that the secular voices come into power, back to power. अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है और ज़्यादा बात है, सब एक साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम सब ऐसे मिलके ही हमारा राष्ट्र को बना सकते हैं। वी कैन ओनली बिल्ड द कंट्री बाय यूनाइटिंग एवरीबडी irrespective of caste, community, religion, everything. Then only the minority community and other weaker section will have their role in this country. For that, in Karnataka, in this election, secular voices, especially Congress, has to come into power. That is our opinion. I want all of you to campaign for that. Inshallah, we will have a victory in this election. That is every sign. All reports are that. We are very hopeful. We are very hopeful. In Kerala also, as all of you know, we are with Congress and we have our united front. It was there in power always, and this time it is the left front. Whatever it is, always secular voices rule Kerala. In Karnataka also, we hope this will happen this time. I request all of you to campaign and vote for Congress. Nice to meet you all. IUML ಇಂದ ಕುನ್ಯಾಲಿಕುಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಕುನ್ಯಾಲಿಕುಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು, ಈ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಆಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಈ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಕ್ಷ, BJP ಪಕ್ಷ, ಈ JDS B ಟೀಮ್ ಇವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕುನ್ಯಾಲಿಕುಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಚಾರ. ಇಡೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. BJP ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಮ್ಮದು ಕಾಪಿ ಚೀಟ್ ಹೊಡೆದವ್ರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್, ಅವರು ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿ, ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಗ್ಯಾಸು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 600 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೊರೆಸೋ ತಂತ್ರ, ಸುಳ್ಳಿನ ತಂತ್ರ, ಸುಳ್ಳಿನ ಮಂತ್ರ. BJP ಅನ್ನೋದೇ ಸುಳ್ಳು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸುಳ್ಳಿನ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ BJP, ಭಾರತೀಯ ಜೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಜೂಟ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವರು ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. 140 ಸೀಟ್ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ, 140ರಿಂದ 150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ತದೆ, BJP 50ರಿಂದ 60 सीट निंतोगतದೆ ಅನ್ನೋದು. वेव तो पूरी जगह से मैं समझता हूँ कांग्रेस का है। हर लोग, हर तबका के लोग जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अभी पूरे हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं समझता हूँ आज के हिसाब से दोनों पार्टियाँ BJP और JDS शायद ही उनका डिपॉजिट खो जाएं।
लेकिन जेडीएस का कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवार है जेडीएस का, इस बार यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। उनका मुतालबा है कि मुसलमान इस बार जेडीएस सही है, ये तो मुसलमान ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ की जो मुसलमान आबादी है हेब्बाड़ की 5 साल से बैती सुरेश साहब से जुड़ी हुई है। अभी तुम 6 महीने पहले आ जाओ और कहो मैं कौम का आदमी हूँ। जब हमारा एमएलए कभी किसी को ना मुस्लिम कहा ना हिंदू कहा, साथ में लेकर चल रहा है। पूरे फेडरेशन ऑफ मसाजिद के लोग, पूरे एनजीओज़, पूरे जो पढ़े लिखे लोग हैं, सियासी लोग हैं, हर लोग उनसे 5 साल से जुड़े हुए हैं। इसमें ना हिंदू मुसलमान का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को पहले से भी ही हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस के ही साथ क़यादत रहेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, वोटर्स का कहना है कि ये 100% कांग्रेस के हक़ में है और बैती सुरेश के हक़ में है। ये अपने आप को अपना क़यादत कहते हुए अपने आप को मुसलमान के वोट को डिवाइड करने के वास्ते ये कहकर जा रहे हैं। मैंने इनको नॉन मुस्लिम के एरिया में कभी कैनवास करते देखा नहीं। इसका मतलब यही है कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या बैती सुरेश मिनिस्टर बनेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे, मुतालबा है? ज़रूर बनेंगे और डिमांड रहेगा हमारा कि बैती सुरेश मिनिस्टर बने। और मैं समझता हूँ 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट लीडिंग बैती सुरेश का रहेगा। ये आप नोट कर लो, 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट लीडिंग जो कहते हैं वो शायद ही हेब्बाड़ से निकलेगा इंशाल्लाह।